ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਗਤ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਕਹਿਲਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਢਰਪੁਰ ਆਪ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 40 ਕੁ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਔਂਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਔਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਰਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ 'ਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ, ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਗਹਰੀ ਕਰਕਾ ਨੀਵ ਖੁਦਾਈ, ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਐਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਮੋਹ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਪਕੜ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਪਕੜ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ, ਪ੍ਰਬਲ ਮੰਗ ਜੀਵੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ? ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਮੈਂ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵੇਸ਼ਣਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵੇਸ਼ਣਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ।
दूसरा, जद इस शरीर का जीवन चाहिए और यही लालसा है, यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का सिद्धांत इसने रख लिया, भावें सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत दे अखरी अर्थ ने सिद्ध अंत, सिद्धि का अंत हो गया, इस तो अगे कोई सिद्धि नहीं है। सिद्धांत, ये सिद्धांत ते नहीं है कि इस तो अगे कोई जीवन ही नहीं है, पर मनुख इसनों सिद्धांत मन लेंदा है। मैं फिर अर्ज करा, सिद्धांत, सिद्धि का अंत। कोई डॉक्टर चाहे वो किसी भी अंग का विशेषिक होवे, भावें आई स्पेशलिस्ट है, भावें ब्रेन स्पेशलिस्ट है, तो भावें हार्ट स्पेशलिस्ट है, भावें डेंटिस्ट है, वो नहीं कह सकता मैं जो प्राप्त किया है सिद्धांत है। सिद्धि का अंत नहीं, उस तो अगे भी खोज हो सकती है, उस तो अगे भी हो सकती है, उस तो अगे भी जा सकता है। इस वास्ते साइंस कभी इस तरह का दावा नहीं करती कि सिद्धांत है, इस तो अगे कुछ है ही नहीं, ऐसा वो नहीं कहते। मनुख आम साधारण ये भुल कर लेंदे ने, ये साडा सिद्धांत है, सिद्धि का अंत है। जैसे जीवन की लालसा ये जीवन सिद्धांत है, बस यही है, ये सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धि का अंत नहीं है, एक रस्ते का पड़ाव है। बड़ी प्रबल है जीवन की लालसा, पर हुण जीवन तां होवे, ये शरीरक जीवन तां रह सकता है जे रिजक होवे, ते रिजक तां हो सकता है रोजी होवे। रिजक ते रोजी का कट्ठा संबंध है। रोजी है ते रिजक है, रिजक है ते तन है, ये तिन्ने कट्ठे जुड़े हुए ने। रोजी, रिजक ते ये जीवन, शरीरक जीवन, इन्हां दे चों एक भी ना होवे, रोजी नहीं है तो फिर रिजक नहीं है, रिजक नहीं है तो फिर ये जीवन भी नहीं है, ये शरीरक जीवन भी नहीं है। इस वास्ते आम मनुख दे अंदर जिहड़ी सारी शक्ति खर्च हो जाती है, वो रोजी दी तलाश, रोजी दी तलाश, रिजक दी तलाश है, रिजक दी तलाश इस शरीरक जीवन दी तलाश, और कुछ भी नहीं है। जिंदगी सारी रिजक दी तलाश च लंघदी है। एक आम सरकारी मुलाजम 8-10 घंटे ऑफिस दे बैठता ही है, घंटा उन्होंने जाने च लगता होगा, घंटा आने दे 8 घंटे की ड्यूटी ते है। दुकानदार ते कई दफ़ा 12-12 घंटे बैठते हैं, फिर सिर घर दे च भी आके सिर खपाई कर देना। ये सारी मेहनत रोजी कहलाती है, इस नाल रिजक मिलता है, ते रिजक नाल ये शरीरक जीवन चलता है। दूर क्यों जाओ, सतगुरां दी बाणी ते ऐसा कहती है, ये शरीर भी एक रिजक है और कुछ नहीं, रिजक नाल चलता है ऐसा नहीं, ये बनिया भी रिजक नाल है, ये है भी रिजक, ये बनिया भी रोटी नाल है भी रोटी, और कुछ भी नहीं है। तुसी आखोगे रोटी नाल बनिया, रिजक नाल बनिया, बस एको नुकता बयान करके अगे चला। रकत बिंद कर निमया, अगन उदर मजार। ये तन बनता है रकत तो, लहू तो ते बिंद तो। फिर गुरबाणी खोल दी है, माँ की रकत पिता बिंधारा, माँ दा लहू है, पिता दा बिंद है। बिंद ते जिन पिंड किया, अगन कुंड रखाया।
दस मास माता उधर राख्या बहुर लागे माया। रिज़िक तो रोटी तो खून बनिया, रोटी तो बिंद बनिया, रकत बिंद दे संजोग तो ये तन बनाया, ये शरीर बने। मां की रकत पिता बिंदारा। पर हुण सवाल पैदा होंदा है, बिंद किवें बनिया, लहू किवें बनिया, रोटी तो बने और किस तो बने, भोजन तो बने और किस तो बनता है? या तो कहो खून किसी होर चीज़ तो बनता है, भोजन तो बनता है, रिज़िक तो बनता है। बिंद किस तो बनता है? खुराक तो बनता है, रोटी तो बनता है। खून किस तो बनता है? रोटी तो बनता है, रिज़िक तो बनता है, खुराक तो बनता है। रोटी तो खून बने है, बिंद बने है, बिंद ते रकत दे संजोग तो ये तन बने है। तो धार्मिक विद्वान कहते हैं तन रोटी तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये रोटियां दा ढेर ही है और कुछ भी नहीं है। गुस्ताखी माफ, रोटियां दे ढेर तो इलावा और कुछ भी नहीं है। जद जमया बनया ये रोटी तो है, हुण अगे जीवेगा भी रोटी नाल। बनया जो रोटी तो है, ये जीवेगा भी रोटी दे नाल। सारे सियाणे बैठे हो सूझवान, जद बनया ही रोटी तो है, जीवेगा भी रोटी नाल। रोटी दा त्याग ते शरीरक जीवन दा त्याग है। कोई त्याग कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। भगत सिरमौर श्री कबीर कहते ने, हे परमात्मा ध्यान नाल सुन, भूखे भगत ना कीजे, ये माला अपने लीजे। ऐ पकड़ अपनी माला, मैथों भजन नहीं आता, भुखिया नहीं कर सकते। रोटी तो बनया, शरीर रोटी चाहिए, चाहिए। दो सिर मांगो चूना, पायो भयो संग लोना। अध सिर मांगो दाले, मुखो दोनों वक्त जिवाले। खाट मांगो चौपाई, सिरहाना और तुलाई। तो क्या जीवन का लक्ष्य यही है? दो सिर आटा, अध सिर दाल, एक पाइया घ्यो। कबीर ने लंबी चौड़ी लिस्ट रखी है रब दे अगों, ऐ मैनू चाहिए, ऐ मैनू चाहिए। मेरे घर का खर्चा आटे का 2 सेर का है, तो 2 सेर आटा मैनू चाहिए। फिर अध सिर मैनू दाल भी चाहिए, एक पाइया घ्यो भी चाहिए। पर हे प्रभु, और भी सुन ले, मैं थले नहीं सोना, मैनू चारपाई भी चाहिए। पर नंगी चारपाई भी नहीं चाहिए, बिस्तरा भी चाहिए, विछाण वास्ते भी चाहिए, ऊपर लैण वास्ते भी चाहिए। तो क्या ये जीवन का यही लक्ष्य है? कहता नहीं, ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं जीवना चाहना इस वास्ते कि परम जीवन प्राप्त कर सका, तैनू प्राप्त कर सका। मैं ना ही कीता लभो, एक नाम तेरा मैं फब्बो। संसारी किसनों कहते हैं? जीवन वास्ते खांदा है, फिर जीवन बतीत करता है खाण वास्ते, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं। कोई भी खुशी का समागम है तो उस खुशी का प्रगटावा भोजन तो होगा। किन्ने प्रकार का भोजन बने। मैं तो कई दफा देख के दंग रह जाना। समाजिक तौर पर जाना पैंदा, विआह शादियां दे सुन के ही मैं दंग रह गया। जब मैनू कहा गया 36 प्रकार का भोजन आता है ना, तो 36 आइटम मौजूद ने, तो तुसी ये 36 चीज़ां खाणियां ने। मैनू कहन लगे तुसी 36 प्रकार के भोजन की व्याख्या की है,
असी 36 तरह के खाने बनाए ने, इन्नियां वैरायटियां, इतना भोजन। खुशी है तो खुशी नूं किवें प्रगट करिए, खुशी नूं किवें मनाइए? बस भोजन बना के। भोजन खुशी है, खुशी भोजन है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, बड़े बड़े गुरमत समागम आते ने, उत्थे मैं कुछ सजना नूं ते इंज देखे बस लंगर दी परिक्रमा करते रहणगे, मजाल है कीर्तन सुनन, कथा सुनन, कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, इस नाल कोई मतलब नहीं है। हुण मैं फिर अर्ज करा, शरीर की पकड़ जितनी ज्यादा होवेगी, भोजन की पकड़ उतनी ज्यादा होगी। शरीर का मोह जितना प्रबल होवेगा, रोटी का मोह उतना ज्यादा होवेगा, उतना ही ज्यादा होवेगा। क्यों? शरीर है ही रोटी। फिर सारी जिंदगी रोटी की तलाश, क्योंकि शरीरक जीवन ही जीवन का लक्ष्य है। इनू ही सिद्धांत मनिया होया है, जल के सिद्धांत नहीं है, नहीं है। सारी मेहनत फिर रोटी वास्ते, सारी भज दौड़ फिर रोटी वास्ते। कि बड़े ध्यान नाल सुन लेना, नोटां दे बंडल, करंसी नोटां दे बंडल रोटियां दे बंडल ने, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मनुख रोटियां दे बंडल इतने जमा कर लेना चाहता है, कम से कम मेरी 7 पीढ़ियां नूं रोटी मिलती रहे, मैनू मिलती रहे, मेरे पुत्रां नूं मिलती रहे, पोतरियां नूं मिलती रहे, पड़पोतरियां नूं मिलती रही। सारी चिंता रोटी दी, जीवन का लक्ष्य रोटी, जीविया जा रहा है रोटी वास्ते, और कुछ भी नहीं। किसी को पूछो की कमा कर रहे हो, की करिए? बस रोटी कमा रहे हैं, रोटी कमा रहे हैं। हर एक दे जीवन का लक्ष्य रोटी है, हर एक दे जीवन का लक्ष्य ये शरीरक जीवन है। तो हर एक दे अंदर बड़ा प्रबल मोह है इस जीवन का, इस शरीर का, इस काया का। थोड़ा जिहा होर नुकता भी मैं थोड़े सामने रखा, जो धार्मिक अनुभवी पुरुष कहते ने, और गुरबाणी, दुखी दुनी सहेड़ी है, जाए तो लगे दुख। बड़े कष्ट नाल, बड़ी मेहनत नाल, बड़ी भज दौड़ नाल, बड़े तरद्दद नाल धन मिलता है, उंज नहीं मिलता। धन की बारिश नहीं आती, पानी की बारिश आती है। या मैं इंज कह दियाँ, रोटियां की बारिश नहीं आती, पानी की बारिश आती। रोटियां दे दरिया नहीं चलते, पानी दे दरिया चलते। रोटियां दा सागर नहीं आंदा, पानी दा सागर आंदा। रोटी ते कमानी पैंदी है। थानू कदी कोई मिलिया जिहड़ा इस तरह आखे, पानी कमाने वास्ते मैं एक मुल्क तो दूजे मुल्क गया, एक शहर तो दूजे शहर गया, रोटी कमाने वास्ते गया। एक शहर तो दूजे शहर, एक मुल्क तो दूजे मुल्क। पानी कमाने वास्ते कोई नहीं जाता, पानी की तो बारिश होंदी है, सारी जगह होंदी है। पानी दे ते दरिया भी चलते पे, पानी का तो सागर भी है। इतनी चिंता पानी की नहीं है, रोटी दी, रोटी दी।